امن و امان کی فضا کرے۔ جو ہمارے بہن بھائی سیلاب سے متاثرہ ہیں مولا ان کی مدد فرما۔ جو ہمارے بہن بھائی زیارات کے لیے جا رہے ہیں یا آ رہے ہیں، کسی بھی طرح کی کاغذات کی یا بارڈر کی بندش کا کوئی مشکل ہے، پروردگار تجھے واسطہ باب الحوائج سخی باوفا عباس کے کٹے ہاتھوں کا مولا ان کی مشکلات دور فرمائے۔ اور حسب معمول ایک ایسی دعا جس کا ہمیں آج بھی فائدہ ہے اور ہماری نسلوں کو آئندہ فائدہ ہوگا۔ ظاہر ہے جو بھی دنیا میں ہے اس نے رہنا نہیں ہے، ہماری نسلیں ہیں کہ ہم نہیں ہوں گے۔ پروردگار جو ہمارے ملک سے مخلص ہے میرے اللہ اس کی مدد فرما، اور جو ہمارے پاکستان سے، عوام پاکستان سے، سرزمین پاکستان سے کسی بھی طرح کی غداری یا دو نمبری کر رہا ہے مولا اسے جڑوں سمیت نیست و نابود فرمائے۔ اول سے آخری ماتمی حلالی تک ایک ایسی صلوات پڑھیے کہ 14 پیر ہم پہ راضی ہو جائیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حسب عادت پھر ویسا ہی آپ نے اپنی سنت عمل کیا ہے۔ میں 9 بجے کا حاضر ہو گیا تھا اور اب ٹائم دیکھ لیں کہ پورے 12 ہو گئے ہیں، اور میں ہمیشہ جب بھی نوکری کرتا ہوں، اب میں نہیں مہربانی نہیں، میں تو آپ کا نوکر ہوں، گزارش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اب میں کھڑا ہوں تو یہ کوئی تقریر کا ٹائم نہیں ہوتا، تقریر کا ٹائم یہی ہے 10:30 11 حد، تو میں جب بھی آتا ہوں یہی ترلا خریدا منے کوئی نہیں جانا، تو مہربانی ذرا کوشش کیا کریں، کیونکہ ہم مولا حسین کے ڈائریکٹ نوکر نہیں ہیں، وہ آپ ڈائریکٹ ہیں، ہم مولا حسین کے نوکروں کے نوکر ہیں۔ تو اس لیے مہربانی آپ کی ٹائم ایسا مل جائے کہ جب تک آپ بھی تھوڑے فریش ہوں، ماحول بھی ایسا ہو کہ ذرا اچھا تیار ہے سارے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ پھر اجازت بات شروع ہو جائے، اور ایک مرتبہ زندگی بھر کے گناہوں کی معافی کے لیے علموں والے کے بابا کا نعرہ لگاتے ہیں، اونچا نعرہ حیدری۔ اچھا اب یہ بتائیے ٹائم میرے پاس ہے اس وقت جناب تقریباً 20 سے 25 منٹ میکسیمم، یعنی مجلس کا ٹائم میرے پاس 20 منٹ ہے جو مجھے بانیان کی طرف سے حکم ہے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ اتنے ٹائم میں آپ نے کوئی نیا موضوع سننا ہے، پسند کرنا ہے، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں وہاں سے شروع کروں جہاں سے قاضی صاحب ختم کر دیتے ہیں؟ کہاں سے؟ یہاں سے ختم کر۔ اچھا سب کے جانا مولا کا سلامت رکھے۔ تو پھر میں یعنی کہ 15-20 منٹ میں اپنا سبق سنا سکتا ہوں آپ کو؟ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جی ادھر مجبوری بھی ہے نا، آپ کو پتا ہے کہ ہاں آپ کو پتا ہے کہ کیونکہ یہ پھر پولیس سیکورٹی کا معاملہ ہوتا ہے، تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ میری وجہ سے آپ کا کوئی مشکل پیش آئے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ لوگ فکر سنیے میرے بھاجی، اب 2 منٹ مجھے دیں گے آپ انشاءاللہ۔ سرکار تیاری ہے؟ میں یہاں بوتل سے پانی سے میسج کیا وضو کر رہا تھا، تو ابھی میرا خیال ہے ابھی بھی شور ہے بھائی۔ شجاعت جی، مان بھائی کافی شور آ رہا ہے بھائی، بھاجی میرے بن گیا بھاجی آواز ہے ذرا حسن بھائی۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ سرکاری اجازت ہے؟ پہلا فکر ایسا ہے کہ انشاءاللہ ختم کر جائے جی۔ اچھا ابھی چیک ہو جائے، ابھی لو تیاری کریں، شیرو بھائی جی تیاری کریں، ابھی پہلا فکر آ رہا ہے، اور دیکھتا ہوں کہ جناب واقعی کتنے موڈ میں بیٹھے ہیں۔ 15-20 منٹ کی جیسا بھی بات ہے، ذرا سونی سی چاہتے جی دعا میں پتہ کرنی چاہیے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، ابھی قاضی صاحب پڑھتے ہیں وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، ابراہیم بھی اس کے شیعوں میں سے تھا۔ اور چھوڑیے اس بات کو کہ کس کا شیعہ تھا، علی کا ہو یا نو کا، تھا تو شیعہ۔ مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ اس بات کو چھوڑیے کہ کس کا شیعہ تھا، چاچا جی خان صاحب کس کا شیعہ تھا، اس سے الگ مسئلہ ہے، تھا شیعہ۔ ابراہیم شیعہ ہے، ابراہیم شیعہ ہے۔ وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، ابراہیم شیعہ ہے۔ اگر تو جناب امتحان لینا چاہتا ہے تو پھر میں آپ کی جوتیوں کی خاک کے برابر نہیں ہوں، اور اگر آپ نے جملہ سننا ہے پھر سونی آواز آخری تک ممبر تک ہے۔ اے مولوی صاحب قرآن کہتا ہے ابراہیم شیعہ تھا جس کی یاد میں تو بکرا ذبح کرتا ہے۔ اگر شیعہ کافر ہے تو بڑی عید پہ کتا ذبح کر، بکرا تو شیعہ ہے۔ بھائی سب کے مولا آپ کے ہاتھ پہلے جملے تو سنے گی، پہلے جملے تو سب کے دعوت اللہ تیری زبانی سلامت رکھے۔ اندر والے باہر والے گلی والے علی والے منشی دونوں زندہ بات ہے۔ چاچا جی تو مہربانی آپ کی کیا بات ہے بھائی، مولا آپ کے ہاتھ سب کے دعوت قرآن کی قسمیں تو کیا بات ہے، سب کے دعوت اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔
कहते नहीं मेरे बने सरकार बहुत शुक्रिया मैं कितने कह रहा जी कुछ दसना लोगा भाई कालू जी भाई सन मैं वहाँ बैठा था उर्दू कर रहा था इन्होंने हुक्म दिया है 20 मिनट में तो मैं मजलिस भी पढ़नी है तो भाजी का हुक्म भी पूरा करने की कोशिश करनी है उन्होंने जी सानू थोड़ा जहा ये एंड करके सुनाया जी तो वो मैं मिक्स कर लेना ठीक है ताकि हुक्म भी पूरा हो जाए और वो पढ़ने ना पाइए भी माने नहीं ना दादी करना होंगे भाजी बिल्डिंग एक ये किसी जाकर बनाई मौलवी साहब ने किने अल्लाह तो सलामत के मिस्त्री बनाता है मिस्त्री बिल्डिंग बनाता है कुरान वइद यरफउ कवाइद इब्राहीम मिनल बैत व इस्माईल अल्लाह कुरान में कहता है जिधर मुंह करके 5 वक्त नमाज पढ़ते हो ना ये बिल्डिंग इब्राहीम ने बनाई है मिस्त्री इब्राहीम था मजदूर इस्माइल था ये मौलवी असी काफिरा बैठा रख सर पे कुरान और फैसला दे जिस बिल्डिंग का मिस्त्री अलैहिस्सलाम हो दरमियान में आने वाला रसूल अल्लाह कैसे आ रहा है जी भाई जी तो बिस्मिल्लाह करा मौला आपके हाथों को सलामत रखे यार ऐसा लगता है मुझे डालने में नहीं ये तो हदीस खबर है ऊंचा नारा है बहुत सलामत रखे यार एडा सोहना मजमा कुरान की कसम एडा सोहना मजमा भाई रजब जी पागोगा जी कह रहे थे फारूकी साहब अशाद जी भाई शरो भाई वो कह रहे थे कि वो जो आपने पढ़ा था ना एक मरतबा कि जनाब इब्राहिम ने एक कुल्हाने के साथ बुतों को कैसे तोड़ा था वो जरा हल्का का पढ़ा है चूंकि ये मेरा पढ़ा हुआ है ये आपको आता है अब मैं गोगा भाई को राजी भी करना है और मैंने पढ़ना वो जुमले जो मैंने पढ़ा नहीं है जो हो गया वो हो गया जरा सिर चुको कैसे तोड़ा था गोगा भाई जी बाकी और थोड़ी गल फिर इंशाल्लाह कैसे तोड़ा था पाइंतन दी कसम हर तफसीर में लिखा है वड्डे बुत कदे की कुंडी लगा के ना अंदरों वड्डा कुंडा मार के कुल्हाड़े से उसे भी तोड़ा उसे भी तोड़ा उसे भी तोड़ा जब बड़े बड़े बुतों को तोड़ा तो कुल्हाड़ा रखा वड्डे बुत के मोंडे पे आवे अंगूठा ते आए चीची ते उंगलियां पीछे त्रै हुंदियां ने 5 उंगलियां नहीं एक अंगूठा एक चीची है उंगलियां ने हजरत अल्लामा तारब जोरी फरमाते हैं अल्लाह लानत करे इस बड़े बुत पे ये हर जगह रहता है भाई सबके रहने मौला आपके हाथों को सलामत रखे भाई अब मैं देखता हूँ कौन सा शिया हाथ था जो अभी तईद अली ने उठा नहीं है पता नहीं कितों मौलवी शियों ने निकाल लिया है कि अली नबियों से तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह जब अली वाजिद भाई जब अली नबी नहीं है तो अली अंबिया से अफसर कैसे हो गया और मौलवी ऐसी पागल नहीं पंग जब पी के नहीं कुरान पढ़ के कहते हैं सिवाय हुसैन के नाना के अली 1.25 लाख नबियों से बेहतर है और कुरान पढ़ के देख 1.25 लाख नबियों में मेरे मोहम्मद के अलावा सबसे अफजल नबी इब्राहिम है कुरान ने दोहरा ले फैसला दे दिया जो जमीन पे खड़े होकर बुतों को तोड़े उसे इब्राहिम नबी कहते हैं जो मोहम्मद पे खड़ा होकर तोड़े उसे भाई थोड़ा थोड़ा साउंड खोली के बाकी सांस खेच रहा है मैं सदके जा रहा हूं यार मजा में एडा सोना के अब मौला दी कसम जाकर दी कोई भाई गुस्सा नहीं करते जब सफे लाभ बिछाए तो मुंह ठंडा रखते हैं सोन भाई जी जब मैं थोड़ा ऊंचा बोलता हूँ फिर आप थोड़ा नीचे करना ताकि फटे नहीं और जब मैं आस्था बोलूँ तो फिर आप भी जरा पहले छिट्टे पे कर लिया करें अल्लाह आपको भाजी आप इजाजत देते हैं कि जो 2-3 जुमले पढ़े हैं इससे बहुत ऊपर जाए मौला तो सलामत कर तैयारी फिर अगर किसी ने आपके सामने कहा कि 1.25 लाख से अब्बा के सामने रसूल ने कहा था जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है पाइंतन पाक की कसम गलत पाइंतन की कसम गलत ऐसा नहीं है जरा सिर चुको एक बार जिगर पे आता है कि बड़ा साल हो अगले साल 27 तक विलायत का नशा उतर जाए मैं थोड़ा पुत्र क्यों सिर चुको खबरदार अगर किसी ने कहा सरकार ने ना 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 पहले सरकार ने कहा
किन्ने को वो तुसी बादशाह जी 1.25 लाख हाँ हूँ तुसा बोलना है सरकार फरमाते हैं ओए 1.25 लाख वो 1.25 लाख जी फरमाया ओए पहले इससे पहले ये बताओ कि तुम मुझे क्या समझते हो जुमला का कुछ छट के जाना मौला आपके हाथ सट के जाना जरा समझा भी सलामती भी सुना करा वो 1.25 लाख वो 1.25 लाख और मुझे क्या समझते हो सारे चुप इधर से जनाब सलमान बोले बादशाह जी आप मेरे मौला अबू बकर बोले बादशाह जी मेरे मौला अम्मार बोले मेरे मौला है अबू बकर बोले मेरे मौला है मिकदाद बोले मेरे मौला है हुज़ैफा बोले मेरे मौला है उन्हें सच्चा पता सारा क्लियर हो गया ना उनका भी पास है हजरत अबू बकर बोले मेरे मौला है हजरत उमर ने कहा अब मेरे मौला है हजरत उस्मान ने कहा अब मेरे मौला है सलमान ने कहा अब मेरे मौला है तो जैसे ही ये कह रहे थे ना अब वो आया जो कुरान लाता है वो कहता है बादशाह जी सिर्फ इन नहीं आप मेरे भी मौला है तो जी अम्मा शिया बोले फिर वो आया जो नबियों की रूहें निकालता है हसन भाई जुमला बड़ा था हसन भाई आपकी लोगों से बात खोल गया समझे ना फिर वो आया जो नबियों की रूहें निकालता है जिसे आप इज़राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं फिर वो आ कहता बादशाह जी सिर्फ जिब्रील का नहीं आप मेरे अरशाद साहब ये बरी की मिलाकर लगा फिर ये मखलूक जो थी ना हजरत जिब्रील और मिकाईल ये है परों वाली मखलूक ये कहाँ गई तो मेरा ख्याल है इतनी गल निकली है कि उड़ती उड़ती गल आई उड़ती गल कदीर के ऊपर गई आदम ने कहा अब मेरे मौला है नूह ने कहा अब मेरे मौला है इब्राहिम ने कहा अब मेरे मौला है मूसा ने कहा अब मेरे मौला है ईसा ने कहा अब मेरे मौला है यूनुस ने कहा अब मेरे मौला है अय्यूब ने कहा अब मेरे मौला है याकूब ने कहा अब मेरे मौला है यूसुफ ने कहा अब मेरे मौला है बेन्यामीन ने कहा अब मेरे मौला है हारून ने कहा अब मेरे मौला है शीश ने कहा अब मेरे मौला है कनान ने कहा अब मेरे मौला है हाम ने कहा अब मेरे मौला है शाम ने कहा अब मेरे मौला है शीश ने कहा अब मेरे मौला है अहमद ने कहा अब मेरे मौला है याकूब ने कहा अब मेरे मौला है सुलेमान ने कहा अब मेरे मौला है दाऊद ने कहा अब मेरे मौला है शमूल ने कहा अब मेरे मौला है हारून ने कहा अब मेरे मौला है मूसा ने कहा अब मेरे मौला है जब 1.25 लाख नबियों ने कहा आप हमारे मौला है फिर ज़हरा के बाबा ने कहा ओए 1.25 लाख ओए 1.25 लाख मैं क्या हूँ फरमाया मौला है फरमाया फिर सुनो जिसका मैं मौला हूँ वो उसका है मौला पिछले अगे आ जाओ मन कुल तो मौला सुनाउन लगा रब कहंदा जिदा मैं कहन लगा अपने बाग में वारी बनाउन लगा मेरे पिछों ना 14 पिंड पै जे जेड़ी पई किन किन मकान लगा जेड़ा पर्दे चों आया सी महाराज वारी उच्चा करके हाथ पाउन लगा जनाब चौधरी मुस्तफा साहब है वो कहते हैं मैं आज़ाद कश्मीर से आया हूँ और मैं लाइव सुना भी रहा हूँ वाह वाह उन्होंने पे वही लुत्फ आ रहा है इबादत का तो अगला फिक्र को और पढ़ लेके ठीक हो गया अच्छा मैं इसमें शक ही नहीं मैं आपका नौकर हूँ आप मुझे घर का फर्ज समझे या आपकी नरम मादी मैं आपका नौकर हूँ अल्लाह आपको सलामत रखे इब्राहिम उसके इब्राहिम भी उसके शियों में से था ध्यान करें मौलवी जी किसके चलो बड़े शिया है अली के शिया नहीं नूह के शियों में से था हुन सारे इतने काल साहब इतों बड़े गए हुन अगो चलना सारे बोला जी मौलवी साहब इब्राहिम सारे वे बोला जी इब्राहिम अगर नूह का शिया है तो नूह किसका शिया था मुंशी जिंदाबाद है मुंशी बक्सर के जाना सबके हाय हाय मौला आपके हाथों में साबित रखे मैं बगैर बात को पढ़ने लगा हूँ बिना वक्त की कोई इंसान सबके मैं चाहता नहीं आज कितने इंसान करते हैं मौलवी साहब चलो नूह सही नूह किसका शिया था चाचा जी सारी तफसीर लिखते हैं नूह आदम का शिया था आदम किसका शिया था और बगैर दांत तो सुना वाला वाला क्यों सुनते आदम किसका शिया था
जैसे ही जनाब हव्वा को अल्लाह ने खल्क किया, हजरत आदम दौड़े, इस फितरत मर्दी फितरत दौड़े। अल्लाह कहा ठहर जा, पहले निकाह होगा, फिर ये तुझ पे हलाल होगी। मान से आना कह रही कि आदम किसका शिया है, आदम किसका शिया है? मालिका ठीक है, निकाह पढ़ नहीं, हाँ फिर पढ़ जल्दी कर मालिका जल्दी कर। ये निकाह होगा कैसे? मेरी तो जेब में अभी कोई पैसा ही नहीं है, तो हकमार कहाँ से? तो फिर हवा मुझ पे हलाल कैसे हो गया? कि भी अम्मा शिया कमीशन न करे, मैं सोच के नहीं पढ़ रहा, कैसे नहीं पढ़ रहा, तो मुंह पढ़ के पढ़ना सारे बोला जे ये परवरदिगार जेब में कुछ दर्जी होता तो जेब होती, ये भी खाली है, क्या दूं ताकि हवा हलाल हो जाए? तो मैं जिनके सदके में बना है ना, उन पे 5 बार दरूद पढ़, हवा हलाल हो जाए। जी सदके जाना, जी सदके जाना। मौला आपके हाथों को सलामत रखे, अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे। बोल मैं पर्दा पा के जुमला आखे लगा कि उन्होंने अम्मा की किस्मत भी अम्मा शिया हो बोले, बाकी ने छुट्टी। इसका मतलब है 5 तन पर सलवात पढ़ने के बाद अम्मा अब्बे पे हलाल हुई थी। आज पता चला जो 5 तन का मुनकर है उसके घर में जनानी है, निकाह नहीं है। अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे। चूंकि निकाह नहीं है इसीलिए यौम घरनी के दुश्मन पैदा होते हैं। मौला आपके हाथों को सलामत रखे, जनाब शहीदा आपके हाथों को सलामत रखे। इब्राहिम हाय हाय सबके नाम को क्या बात है? उसके शियों में से था। अल्लाह आपकी इस तरह चादर में खुलना बड़ी मेहरबानी। मेरी बहनें अगर सुन रही हैं तो मेरी तरफ से दुआ है इस नारे के सदके में अल्लाह आपकी ज़िंदगी दराज फरमाए जी। मौला आपकी इज्जत और रिस्क में इजाफा फरमाए और आपकी चादरें महफूज रखे। तो भाई जरा सर चुप हो जी, बड़ा जुमला कर चुके। मैं आगे बढ़ने लगा था, मैंने पाक होगा से पूछा कि ये नारे की आवाज़ कहाँ से आ रही है, तो वो फरमाने कि हमारी माएँ बहनें बेटियाँ बैठी हैं। ठीक है जी, कि मैं बयाना वा तो सारियाँ मावा भैन नहीं वो यार कहते हैं बीवी में तो बैठे मुझे बधाइयां में ध्यान ना, और मेरिया सारियाँ मावा भैन भी ना जी। मैं सब सर भाई मौला आपको सलामत रखे। क्योंकि कई ऐसे हैं जिनकी जवान भी बैठे होंगे तो मैं तो फटाफट आके जावा मेरिया ने भाजी सिर चुको। अब एक फिक्रा अपनी माओ बहनों को कहने लगा, चम से सोना पुत्र, एज 12 साल, नाम इस्माइल। यार भाजी ਵੱਡਾ जुमला लगा ਤੇ जुमला एक तौलिया मेरे को ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ 7 ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 7 ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਆਂਦਾ ਏਡਾ ਮੋਟਾ ਪਰਦਾ ਪਾਣ ਲਗਾ। लेकिन ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭ ਲੈਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖ ਲਗਾ, ਚੰਨ से सोना पुत्र, हाय हाय हाथ में लिया निकले। लाल टोपी पहन के झंडी लटक रही थी, बुढ़ा शैतान आया। ऐना को बोलो तो मैं राज गया। अल्लाह लानत करे इब्लीस पे, जब भी आता है बुड्ढे की शक्ल में आता है। आप ही याद आता है मौला तो सलामत रखे यार। थोड़ा मैडम एडा सोना है सबके जावा ये 7-8 पर्दे ने ते आप थोड़ा साफ लाना जी। दस्तक दी एक बीबी के बाद भाजी बीबी के बाद कौन कहा तू भी तक यहाँ बाबा जी होया कि तेरा शौहर इब्राहिम तेरे पुत्र को। बीबी हाल कहती है बाबा जी 88 साल दुआएं मांग मांग के इब्राहिम को पुत्र मिला है, ये कैसे 88 साल तक ये कैसे मुमकिन है कि अब जब पुत्र मिला है चांद से सोना पुत्र, वो 12 साल का यंग हो गया, नौजवान हो गया, कुछ सालों के बाद शादी हो जाएगी, कत्ल कर रहे हैं, ये कैसे मुमकिन है? और बीबी गल्ला ना कर बाहर निकल, 7 पर्दे या 7 पर्दे पहला बना पे दे, और बीबी बाहर निकल। अब उसका ना दिमाग काम नहीं करता क्योंकि वो बुढ़ा हो गया है, अब उसका दिमाग काम नहीं करता। बीबी ने बट्टा पकड़ा, हर मरे हट मरे हट मरे, तू बाबा नहीं तू इब्लीस है। कहता बीबी तूने सही पहचाना, पाजी ने करे तूने सही पहचाना कि मैं इब्लीस हूँ, लेकिन मेहरबानी कर तुझे समझ कैसे आई कि मैं इब्लीस हूँ? 5 बंदे बोलो पर्दे चौके गए, थोड़ी मेहरबानी। बीबी ने बट्टा मार का, अल्लाह की तुझ पे लानत हो, जो भी
नबी की बीवी को घर से बाहर लाए या नबी के दिमाग पे हमला करे, वो कल भी इब्लीस था। हाय हाय, जो समझा रोगी भाई, जो बंदा समझा है जी, मेरी तरफ से दोनों हाथों में सलाम है जी। ऊंचा नारा है मेरी। अच्छा मौला आपको सामने रखें, मौला आपको सामने रखें। जनाब सईदा आपके हाथों के सामने मान भाई ने इशारा किया, वो कहते हैं मजबूरी है, फिर इंशाल्लाह जिंदगी बाकी मुलाकात बाकी। मौला आपको सलामत रखे। सईद भाई वो अली